गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो देखिए, सबसे पहले प्रिज्म समझ लीजिए क्या होता है। प्रिज्म, एन ऑप्टिकल प्रिज्म हैज़ टू ट्रायंगुलर बेसिस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस which are inclined to each other. Angle between its two lateral faces is called angle of prism और इसको हम A से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, प्रिज्म जो होता है ये है प्रिज्म। इसमें बच्चों दो तो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, एक ये है और एक इसके जस्ट पीछे है, और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो दो ट्रायंगुलर फेसेस होती है और तीन रेक्टेंगुलर फेसेस इसमें होते हैं, और दो लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता हूँ कि प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है। The apparatus needed are pins, bell pins, a protractor, scale, a very sharp pencil, and a prism. This is a prism. Prism is actually a transparent glass piece which has two triangular faces and three rectangular faces. You can also say that this is a wedge-shaped structure having two refracting surfaces. Place a white sheet on the wooden board provided to you. Place the bell pins to secure the paper at the four corners. Place a triangular glass prism on a white sheet of paper. Trace the boundary very carefully. And remove the glass prism. Name the three vertex of this triangular glass prism as A, B and C. Choose any point on the face of AB. Place the protractor at this particular point and mark 90 degree. That's a normal. Join the lines of the normal along the marked points. Name them as N, N dash. Mark this point as O. Keep the protractor exactly at point O along the normal that you have just drawn, and mark an angle of 35 degree, making an angle with the normal. With the help of a scale, join this point. Now you get an incident ray. Mark this as EO. So EO becomes the incident ray, and angle EON is the angle of incidence. You have to fix two pins on the incident ray exactly vertical
this as P1, P2 and place the prism on the traced boundary. In absence of any particular medium, light ray will always travel straight line showing a rectilinear propagation. So here you can say that the light ray is traveling along a medium called as air, and in absence of this glass prism it must have traveled a very straight line path. Now try to observe the images of the two pins along the other face of the glass prism. Slowly adjust the position of your head in such a way that the two pins align themselves to form a single image as shown right now here. Exactly at this now, fix the third pin in such a way that it aligns itself with the two images of the pins that you see along the face of the prism. Now the three pins appear to fall in a single straight. Take the fourth pin and place it in such a way that it aligns itself with the two images visible from the face of the prism and the third pin, so that all the pins appear to fall in a single straight line. The pin-pricked areas, encircle the pin-pricked areas and mark it as P3 and P4. Remove the glass prism, join the points P4 and P3 at this particular point. Mark it as Q. Along the point Q and along the face AC, place the protractor and mark the normal, that's 90 degree. Join the points and mark the normal as M dash. Join points O and ray OQ will show the path of the refracted ray of light. So it's clearly visible that an incident ray EO, when it enters from air into a glass slab, it bends towards the base of the prism, and once it emerges out, again it bends outwards. So here you can see that the ray EO is the incident ray, and as it enters from a rarer medium into a denser medium, it bends towards the normal, and as it enters from a denser medium into a rarer medium, it bends away from the normal. Extend EO and also extend RQ. Now you can see that the angle formed between the produced incident ray and the emergent ray is called as the angle of deviation. An angle of deviation is given by a Greek letter delta. So we have an angle of deviation which is given by a Greek letter delta. Stop. With the help of a protractor, you can measure the angle of deviation.
this case, the angle of deviation is equal to 48 degree. Now we have to measure the angle of emergence with the help of a protractor. Keep the protractor at point Q and measure the angle of emergence. In this particular case, you can see that the angle of emergence is close to 75 degree. So angle of emergence is equal to 75 degree. Angle, the angle of prism. This angle is called as the angle of prism. An angle of prism for an equilateral prism is 60 degree. You can see here, now this is the incident ray, this is the normal, and the angle formed is angle of incidence. This is the refracted ray, this is the emergent ray, and this is the angle of emergence, and this is the angle of deviation, and this is the angle of prism. By observing this video, you can follow the procedures as per the instructions given, and you can find the angle of emergence and angle of deviation for various angle of incidence. बच्चों ये एक्सपेरिमेंट था। अब देखिए एंड में इस तरह की फिगर बनी थी। अब देखिए यहाँ पे आप रिलेशन देख लीजिए, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ एमर्जेंट है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, और ये आपको दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 एंड R2। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एंगल A जो होता है वो एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर होता है। डेट मीन्स एंगल A इज ऑलवेज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल R1 प्लस एंगल R2। सेकेंड, एंगल A प्लस एंगल D जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल I प्लस एंगल E के बराबर होगा। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ एमर्जेंट। अब देखिए ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है ये क्या होता है, एमर्जेंट रे को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और इंसिडेंट रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो इनके बीच का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन एमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। तो बच्चों आपको ये दोनों जो है याद करने रिलेशन, ज़्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट जाती है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर क्या है, ग्लास है। तो जैसे ही वो एंटर करती है किस में बच्चों, एयर से ग्लास के अंदर, तो एयर जो होता है वो रेयर मीडियम होता है, ग्लास जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। तो हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दिया, सही। अब ये एक जो रे ऑफ लाइट है इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, मगर वो टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है, बेंड हो जाती है। अब ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे का बीच का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए अब ये एक रे ऑफ लाइट है, ये किस में है, ग्लास के अंदर है। अब इसको कहाँ जाना है, एयर में जाना है, मतलब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जा रही है। तो जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। हमने यहाँ पर एक नॉर्मल खींच लिया, ये क्लियर है। अब ये जो एक रे ऑफ लाइट है इसको जाना तो ऐसे सीधे चाहिए था, मगर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है, चली जाती है। तो अब ये दो दूसरी रिफ्रैक्टेड रे होती है, इसे हम बोलते हैं एमर्जेंट रे, इसे क्या बोलते हैं, एमर्जेंट रे। और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ एमर्जेंस,
उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमर्जेंस। और ये रिलेशन आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो एमर्जेंट रे है इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और ये जो इंसिडेंट रे है इसे आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। इनके बीच का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब भी ये इंसिडेंट रे ग्लास के अंदर एंटर करती है तो ये टुवार्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म क्या होती है, बेंड हो जाती है। क्लियर है? अच्छा, जब ये बाहर जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है, जाती है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होती है, जाती है। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट था टू ट्रेस द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब बच्चों ये डायग्राम आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। अब देखिए प्रिकॉशंस। सबसे पहली प्रिकॉशन है द डिस्टेंस बिटवीन पिंस P1, P2 एंड दैट बिटवीन P3 एंड P4 शुड बी एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर और मोर। मतलब जो आप पिन लगाओगे P1, P2, P3, P4 इनके बीच में कम से कम 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। दूसरा, पिन्स जो होती हैं इनको आप वर्टिकली लगाओगे। सीधी पिन जो है आपको जो है कार्डबोर्ड के अंदर लगानी है, टेढ़ी नहीं करनी है। थर्ड है द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड लाइज बिटवीन 30 to 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप लोगे वो 30 से 60 डिग्री तक आपको लेनी है। नेक्स्ट, while viewing the collinearity of pins an image of the eye should be kept at a distance from the pin so that all of them can be seen simultaneously। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1 और P2 पिन को क्या करते हैं, एक साइड के प्रिज्म में लगा देते हैं। प्रिज्म के एक साइड क्या करते हैं, कार्डबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। दूसरी साइड से हम क्या करते हैं, पिन P3 और P4 लगाते हैं। इस तरह से लगाते हैं ताकि P1, P2, P3 और P4 ये चारों की चारों कोलिनियर हो। तो उस केस में आपको चारों पिन को थोड़ा डिस्टेंस से देखना है ताकि आप इनकी कोलिनियरिटी कंफर्म कर सके। अच्छा, अब देखिए जब भी आप कोलिनियरिटी चेक करेंगे तो आपको जो पिन्स हैं उनकी फीट को देखना है। उनकी क्या करना है, फीट को देखना है, हेड को नहीं देखना है। क्लियर है? अच्छा, और वैल्यू जो आप निकालोगे एंगल आई की, एंगल R1 की, एंगल R2 की, एंगल E की और एंगल D की, ये आपको केयरफुली जो है मेज़र करनी है। एक बार बच्चों आप रिलेशन देख लीजिए। एंगल A जो होता है वो एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर होता है। सेकेंड, एंगल A प्लस एंगल D किसके बराबर होता है, एंगल I प्लस एंगल E के बराबर होता है। ये दोनों रिलेशन जो है आपको याद रखने हैं। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर अ प्रिज्म व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म द रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? इसमें उन्होंने कहा आपको एक प्रिज्म दे रखा है, उस पर जो इंसिडेंट रे होती है, सही, जब वो इंसिडेंट होती है किसके ऊपर, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर प्रिज्म के अंदर, तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो कैसे होगी, सही है, बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। हाँ, वो क्या होगी, नॉर्मल के टुवार्ड्स क्या होगी, बेंड होगी। मान लीजिए इंसिडेंट रे है, मान लीजिए आपको एक प्रिज्म दे रखा है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये ऐसे सीधा जानी चाहिए ना, मगर होगा क्या, ये टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है, बेंड हो जाती है। क्यों, यहाँ पर रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है। जब भी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल क्या होती है, बेंड होती है। सो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, ए आएगा, बेंड्स टुवार्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कब हो सकता है, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। सही, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई होगा। अब देखिए इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन। इसमें उन्होंने कहा है फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म द एमर्जेंट रे,
देखिए इसमें मैंने कहा है फॉर द रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म द एमर्जेंट रे। अब एमर्जेंट रे किस तरीके से बिहेव करती है? पहला, इट बेंड्स टुवार्ड्स द वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म। क्या ये वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म की तरफ बेंड होती है? दूसरा, बेंड टुवार्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्या ये प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होती है? गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। ये तो बच्चों बिल्कुल ही गलत है। क्यों? जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो डेविएशन होना मस्ट है। नेक्स्ट, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इज लिटरली डिस्प्लेस्ड। ऐसा भी नहीं होता है। सही, जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब होता है वहाँ पर ये पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है। देखिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में क्या होता है? दोनों जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं। इस केस में इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आपस में क्या होती हैं? एक दूसरे के पैरेलल होती है और लेटरली डिस्प्लेस्ड होती है। मगर जो प्रिज्म होता है इसके अंदर दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे होती है वो कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकती है। तो बच्चों सी और डी जो है ये गलत है। अब हम ए और बी को देखते हैं। पहले इन्होंने कहा है बेंड टुवर्ड द वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म। क्या ये प्रिज्म के वर्टेक्स की तरफ बेंड होती है? और दूसरे में उन्होंने कहा बेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो देखिए इसकी शेप इस तरीके से बनती है। क्लियर है? तो अब देखिए ये जो एमर्जेंट रे है ये क्या हो रही है? बेस ऑफ द प्रिज्म की तरफ क्या हो रही है? बेंड हो रही है। तो इसका बी आंसर होगा। क्लियर है? अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही होती तो उसका मतलब वो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द वर्टेक्स ऑफ द प्रिज्म। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेक्टली थ्रू अ प्रिज्म। तो देखिए इनमें से कौन सा जो है डायग्राम सही है? क्लियर है? तो आप एक ना जनरल पिक्चर बना लीजिए कि इस तरह की शेप होती है। सही, जब भी आप रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म की बात करेंगे। क्लियर है? देखिए ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एयर से क्या हो रही है? ग्लास के अंदर एंटर हो रही है, तो ये टुवार्ड्स नॉर्मल क्या हो रही है? बेंड हो रही है। अब ये एक रे ऑफ लाइट है, ये ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या होगी? बेंड होगी। क्लियर है? तो ये डायग्राम सही है। वैसे भी आप क्या करिए इसकी एक जनरल सी फिगर बना लीजिए ये कि इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बच्चों पिन से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने कहा है 4 स्टूडेंट्स वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर ड्राइंग द पाथ ऑफ लाइट रे थ्रू अ प्रिज्म फिक्स द पिन्स P1 एंड P2 मार्किंग द इंसिडेंट रेज एज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए एक बच्चा है, वो गिवन जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसने पिन्स P1 और P2 को इस तरीके से लगाई है। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट अरेंजमेंट कौन से स्टूडेंट का है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। सही, तो अब देखिए ये जो एंगल है आपको 30 से 60 डिग्री के बीच में ही लग रहा है। सही, तो इसका मतलब इसमें मुझे कोई गलती नहीं लगी है। हाँ, मगर हम क्या करते हैं आगे के ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है आगे वाला इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हम नॉर्मल एक ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री से ज़्यादा लग रहा है, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमें क्या लेना होता है? 30 से 60 डिग्री के बीच में लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको अरेंजमेंट को गलत बताएंगे। क्यों? यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या है? 60 डिग्री से ज़्यादा है। अच्छा यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। सही, तो देखिए ये भी सही है। क्लियर है? यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 30 से 60 डिग्री के बीच में ही मुझे लग रहा है। क्लियर है? वैसे तो प्रोटेक्टर से पता लगेगा। अच्छा मगर यहाँ पर जो 2 पिन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जो है इसके मुकाबले कम है। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है पिन्स के बीच में और यहाँ पर कम है। तो आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे ना उतना आपके लिए बेटर होता है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे है वो लगभग क्या है? परपेंडिकुलर ही दे रखी है आपको।
सही, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत है। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। क्लियर है। अच्छा एक चीज और देखना, जो आप इंसिडेंट एंगल बनाते हो वो लगभग मिडल में होना चाहिए, किसके, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। सही, यहाँ पर देखिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हम कहाँ पे बना रहे हैं, अपर हाफ में बना रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे फिर भी मिडल में बना रहे हैं और यहाँ मिडल से थोड़ा नीचे बना रहे हैं। क्लियर है। तीन चीज़ें आपको देखनी है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 से 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। दूसरा, पिंस के बीच में डिस्टेंस सूटेबल होना चाहिए, मतलब 5-6 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तीसरा, ये जो आप इंसिडेंट रे डालोगे वो लगभग मिडल में होनी चाहिए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो फॉलो करेगा उसी को हम क्या करेंगे, सही लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने कहा है अ स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। एक स्टूडेंट है वो गिवन एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ही कैन गेट द करेक्ट मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस ई बाई फॉलोइंग द लेबलिंग इंडिकेटेड इन द फिगर। आपको बताना है किसमें एंगल आई और एंगल ई करेक्टली लेबल्ड है। क्लियर है। अच्छा देखिए, सबसे पहले एंगल आई जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ई जो होता है वो एंगल ऑफ एमरजेंट होता है। सही, एमरजेंस होता है। क्लियर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, ये इंसिडेंट रे है तो हम यहाँ पे नॉर्मल खींचेंगे, तो ये जो एंगल है आई होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एंगल आई होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर हम नॉर्मल खींचेंगे और ये एंगल क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो यहाँ पर तो दोनों एंगल ही गलत है। यहाँ पर एंगल आई सही है बच्चों, मगर एंगल ई ये वाला होना चाहिए, तो ये भी गलत है। यहाँ पर एंगल आई और एंगल ई दोनों ही सही है। यहाँ पर बच्चों उल्टा है, ये एंगल आई होना चाहिए और ये एंगल ई होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों बी जो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। सही, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ एमरजेंस है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डेविएशन डी सफर्ड बाय अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज द एंगल। इसमें उन्होंने कहा एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा एंगल होता है। सही, इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एमर्जेंट रे फ्रॉम द इंसिडेंट रे। ये क्या होता है, एंगल होता है किस किसके बीच में, एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में। तो ये बच्चों ऑप्शन सही है। सेकंड में कहा सबटेंडेड बाय द एमर्जेंट रे फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रे, ये गलत है बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट, सबटेंडेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे फ्रॉम द इंसिडेंट रे, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सबटेंडेड बाय द इंसिडेंट रे फ्रॉम द रिफ्रैक्टेड रे, और ये भी बच्चों गलत है। क्यों, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये एंगल होता है बिटवीन एमर्जेंट रे एंड द इंसिडेंट रे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म। आपको एक इक्विलेटरल प्रिज्म दे रखा है। इक्विलेटरल प्रिज्म मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म जो होगा वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, यहाँ पर 60 डिग्री होगा। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर इन्होंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 40 डिग्री है, एंगल आई जो है 40 डिग्री है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस कितना दे रखा है आपको, 58 डिग्री। अब इन्होंने पूछा क्या है बच्चों, उन्होंने पूछा है द एंगल ऑफ डेविएशन सफर्ड। आपको एंगल ऑफ डेविएशन जो है फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए रिलेशन क्या होता है, एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। एंगल आई हमें 40 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ एमरजेंस 58 डिग्री दे रखा है, एंगल आई कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 38 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, सी। देखिए दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये किसके बराबर होता है, एंगल आई प्लस एंगल ई के बराबर होता है। तो यहाँ से इन्होंने एंगल डी निकाल लिया, एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए। सही। तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ से निकाला है, दूसरे फॉर्मूले से डिराइव किया है।
सही। तो आप ये ध्यान रखना, इक्विलेटरल प्रिज्म के अंदर जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ये हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 एंड R2 आर रिलेटेड टू द एंगल ऑफ प्रिज्म A एज पर रिलेशन। देखिए इन्होंने कहा आपको दो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है R1 और एक दे रखा है R2। इसका हमें जो है रिलेशन बताना है एंगल ऑफ प्रिज्म A के साथ। तो देखिए एंगल A जो होता है ये किसके बराबर होता है, एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर होता है। ये हमारा क्या था बच्चों, पहला फार्मूला था। सही, दो फार्मूले हमने पढ़े थे ना। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर एंगल ए जो है वो एंगल R1 प्लस एंगल R2 के बराबर होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के सम के बराबर होता है। अब देखिए 9th क्वेश्चन में मैंने कहा है अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू ड्रॉ लाइट रे path using a prism. Correct depiction of angle of deviation suffered by the light ray is shown in which of the following figure. देखिए आपको बताना है करेक्ट डायग्राम कौन सा है, क्लियर है। अच्छा आप एक बात ध्यान रखना, डायग्राम हमेशा ये वाला सही होता है, इस तरह से जो बना हुआ हो, बस ये जो है मिड में होना चाहिए, बस क्लियर है। अच्छा अब देखिए सारे के सारे डायग्राम ऐसे ही बने हुए हैं। तो फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि आपको एंगल ए और एंगल डी दे रखे हैं। तो हम देख लेंगे एंगल ए और एंगल डी कहाँ पर हमने सही तरीके से प्लेस किए हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म यही होता है, एंगल ऑफ डेविएशन यही होता है, तो ये वाला सही है। इसमें देखिए एंगल ए तो सही है मगर एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला होता है, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन गलत दे रखा है। अब इस इंसिडेंट रे को जब आगे की तरफ बढ़ाओगे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, एंगल डी होगा। तो यहाँ पर एंगल डी गलत प्लेस कर रखा है, लेबल कर रखा है। यहाँ पर भी एंगल डी जो है गलत प्लेस कर रखा है, सही है। कैसे, हम यहाँ पे इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इनके बीच का जो एंगल होगा इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर है। तो बच्चों यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए एक बार आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। To study the following properties of acetic acid. एक बार आप दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को समझ लीजिए। Going to find angle of deviation for different angles. We need a prism, drawing board, sheet of white paper,
paper pins and drawing pins. Fix the sheet of white paper on drawing board with the help of drawing pins. Then we place the prism along its triangular base on the middle of the paper. Mark the boundary ABC of the glass prism. We remove the prism and draw a normal LM at point Q on side AB. Draw ray PQ making an angle of 30 degrees with the knob. Fix two pins P1 and P2 on ray PQ. We place the prism back on ABC. Look at the images of P1 and P2 through the side AC. Fix two more pins P3 and P4 on this side such that pins P3 and P4 and images of P1 and P2 appear to be on a straight line. Remove the prism and pins. Draw a line towards side AC through the points of pins P3 and P4. Call them S and R. It will intersect AC at point R. We draw a normal or perpendicular on side AC through point R. Extend ray PQ and ray SR on opposite sides to intersect each other at point K. Measure the angle between these two rays PQ and SR, which is angle of deviation D. Angle PQL is angle of incidence, angle MQR is angle of refraction, and angle SRY is angle of emergence. Record angle of incidence, angle of refraction, and angle of deviation, that is I, R, and D for 30 degrees. Repeat the procedure for angle of Repeat the procedure for angle of incidence. Repeat the procedure for 30 degrees. देखिए बच्चों, ये वाला एंगल R1 होगा यहाँ पर जो दे रखा है, और ये एंगल R2 होगा। क्लियर है? देखिए ये वाला एंगल R1 होगा, एंगल RQM, और एंगल QRY ये एंगल R2 होगा। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल I, इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल D, एंगल A और एंगल E, इन चारों की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम चेक करते हैं एंगल A प्लस एंगल D जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल I प्लस एंगल E के बराबर होगा। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हमने जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लिया है, 30 डिग्री। इसके बाद आप 45 डिग्री लेकर दूसरी एक और बारी एक्सपेरिमेंट करेंगे, सही। और फिर दोबारा से आप एंगल I, एंगल R1, एंगल R2, एंगल E और एंगल A और एंगल D क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। क्लियर है? और दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल D जो है वो एंगल I और एंगल E के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप 2-3 बार इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और बच्चों इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।